to share some thoughts. As I returned from Thailand, some of you there, and what a successful event we had. It was fun to meet you and shake your hands, and to see the energy and the excitement in the room. And I'm just so excited about what Oprah Rose represents to all of you. And it is such an incredible investment, first and foremost, when you see the value of the percentage rates of return around the harvesters for you personally, and then you allowing you to also invite others to be a part of that and improve their own personal net worth. It is a powerful, powerful opportunity, and one that all of you see the vision, the greatness, and the ability to not only help yourself, help your family, but help those that you influence. I'm proud to be a part of Oprah Rose. I'm proud of what we're doing. I'm proud of a business plan that has integrity and has structure. And it's so exciting, the growth that is taking place worldwide and the amount of harvesters that are being sold to individuals to help them strengthen their own personal net worth is so, so powerful. I invite you to come join us. I invite you to work hard. Those that put in the effort will be rewarded greatly. And thank you for the opportunity. For those of you that were in Thailand, what a treat, what a blessing, opportunity to shake your hand and to be with you. So with that, Anshuman, I'm so grateful to be a part of this team. I feel honored and privileged that you would allow me to join you this morning, and look forward to great things as we finish out November and move towards December. I see huge opportunities ahead for all of us. Thank you so much, Anshuman, and thank you to all of you this morning. Thank you very much, sir, for your kind words. And it's really, we had a great time together, and we will come back we are back with a lot of energy. And you can see in a back office, very soon this month, we have a great plan together. And of course, we have someone special with us, and I don't want to miss his words. And it's our privilege to have him in this call. Very good morning, Mr. Lonsberry. We want to hear some words from you, sir. Please welcome. Hey, good morning, everybody. Anshuman, thank you for the warm welcome. Rick, thank you for your words of wisdom. So I'm walking into my office here this morning. We've had some early morning meetings that have gone very well, but I want to thank everybody first and foremost for being on the call. And more importantly, I want to say thank you to all those familiar faces. We had a great event in Phuket in Thailand. It was great to see people there, and it's exciting to see what's going on with Oprah Rose. This is an opportunity of a lifetime for everybody who is on the call. That this project is so different. You have an opportunity of a lifetime and make a difference with Oprah Rose. As we see harvester sales go out, as we see commissions go out, it's so exciting to be able to see the progress and the success. These are opportunities that just don't happen every day. This is something that we worked on here almost for 4 years. And I almost want to take everybody and do a little office tour here and just show them how many people are behind them and how many people are excited for your success. That Oprah Rose has a whole team. We have a whole team of engineers. We have a team of customer service. We have a team ready and willing to see you grow and work, as we're so excited for your success in the future. We're going to be rolling out some fun promotions here at the first of the year. We're, of course, going to be doing some more meetings worldwide. We've been in the last couple of months, we've been in Mexico, we've been in Thailand, we've been in Dubai, and we've seen success everywhere we go. We see success with Oprah Rose. That should tell you something. Because do not waste the opportunity. Make sure that you go out and get your
fair share of the commissions that Operos is going to be paying for helping us mint this token into supply. We're excited for the future. We're excited for you. And do not sleep, do not rest. Get out there and make a difference. And Ashman, thank you very much. And I'll turn the rest of the time back over to you. Thank you very much, sir, for your kind words. And we are really happy to be a part of Operos journey, with Operos. And we are happy actually, because what we are doing, because I feel today, everyone needs a good home, because everyone is dreaming, everyone want to become successful. They put their best effort, but end of the day, they choose the home. That home actually, close down or do something wrong happen with the home. So we feel that Operos is a good home for us, and Operos having the best people behind. You guys are there, always helping us to grow. So it's really great for us. Thank you very much, sir. Rick, sir, thank you very much. And look forward to, meet you all again soon. Sounds good. Thank you, Ashman. All of you, please have a great day. Go out there, get something done. And remember this, there are so many scams in the marketplace. Share with people the opportunity to have a real long-term home. Real home. That's what this is all about. The investment's phenomenal. You'll do great things. And I agree with Lauren that this has integrity. It has a great pathway to make a return on your investment and to build true net worth. We're excited to be a part of you. Ashman and team, thank you so much. And I'm going to sign off and go about my day. Thank you very much, sir. Thank you very much. Be here with us. Thank you. So दोस्तों, ये रहा हमारे साथ हमारे फाउंडर्स जो लोग आए हमारे आज का कॉल पे, और हम लोग काफी दिनों बाद फिर से शुरू किए आज का ये कॉल। और आज का कॉल का मेन मुद्दा ये है कि एक्सपीरियंस कैसा लगा, लोगों को क्या फील हुआ, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर है, बहुत अनुभवी है, बहुत कुछ वो लोग जानता है, बहुत सारे कंपनीज को वो लोगों ने देखा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े, लेकिन उनका जवाब मुंह से सुनेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ओपेरोस के कुछ अपडेट्स के बारे में और ओपेरोस के कॉन्सेप्ट के बारे में। द की पॉइंट्स ऑफ ओपेरोस, व्हाई ओपेरोस, क्यों ओपेरोस एक अलग अपॉर्चुनिटी है, कौन है इसके पीछे, क्या साइंस है इसके पीछे, क्यों ओपेरोस का जो सिस्टम है वो डिफरेंट अदर नेटवर्क मार्केटिंग या अदर क्रिप्टो करेंसी में कौन सा फॉर्मूला पे ये काम कर रहा है, क्यों ये नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी और जो यूएसडीटी होता है उसके अंदर जो डिफरेंस है, ओपेरोस किसको फॉलो करता है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड किया हुआ है और इसका सिस्टम कैसे बनाया गया है। सो ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर आलोक बदानी को। आलोक जी, आप हमें बताइए, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफी सालों से है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपका बहुत ज्यादा आपने तो अनुभव नहीं है आपका, आपने बताया, लेकिन आपने बहुत आपके आंखों के सामने बहुत सारे चीज होते हुए देखे। तो क्या आप आपका एक्सपीरियंस हमें शेयर कर सकते हैं, आपको क्या क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, और आप ओपेरोस को किस नजरिए से देख रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आलोक बदानी। थैंक यू अंशुमन सर। बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे मौका दिया इस जूम पे कुछ बातें बोलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी टीम मेंबर्स को अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ आलोक बदानी, मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। बेसिकली मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में पिछले
10-12 सालों से काम कर रहा हूँ और क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमारा जो जन्म है ये पिछले 6-7 महीनों का है। तो बेसिकली मैं एकदम न्यू बॉर्न बेबी के रूप में इस इंडस्ट्री में आया था और इंडस्ट्री पुरानी थी बट इंडस्ट्री को समझने के लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि क्रिप्टो में काम करने के पहले क्रिप्टो की जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे कॉइन्स के बारे में हमने बहुत ही बारीकियों से जब समझा कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है, किस तरीके से ये इंडस्ट्री में पंप होता है, किस तरह से इस इंडस्ट्री में डंप होता है। तो एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया था मुझे कि इस इंडस्ट्री में जिस भी कॉइन का डिमांड बढ़ता है, उसका जो प्राइस है वो हाई होता है और इस इंडस्ट्री में जिस करेंसी की डिमांड घटती है, उसकी हमारी प्राइस कभी नहीं बढ़ती, वो धीरे-धीरे लो पे जाती है। लोग आप देखो अभी जो चीज़ समझ में आती है कि ये उड़ते हुए सूरज को सलाम है। कहने का मतलब ये है कि हम चढ़ते हुए सूरज को ऑलवेज़ सलाम करते हैं। तो ये इंडस्ट्री में ऑलवेज़ दिन पे दिन नए-नए बहुत सारे कॉइन्स आते हैं और पर डे कुछ ना कुछ कॉइन्स जो हैं वो स्कैम का रूप लेती हैं और पर डे कुछ ना कुछ कॉइन्स जो हैं वो रियल भी आती हैं। लोग ऐसे किसी कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच करके कि इसका दाम भविष्य में बढ़ेगा। बट आने वाले दिनों में होता क्या है उन कॉइन्स की जगह पे कुछ नए कॉइन्स आ जाते हैं और जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस नहीं बढ़ करके नए वाले कॉइन्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रीज़न ये है कि हम जिस कॉइन्स के पीछे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या कभी हमने ये बारीकियों से सोचा है कि उस कॉइन की एक्चुअल यूटिलिटी क्या है? वो कॉइन एक्चुअल में कहाँ यूज़ होता है? अगर किसी भी कॉइन की जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है और उस कॉइन्स पे अगर हम अपन पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनिटली वो पैसा हमारा मार्केट में डूबने वाला है। ये मुझे मेरे एक छोटे से वर्क पीरियड में समझ में आ गया। अभी आप देखो कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के जितनी भी कॉइन्स है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। लेकिन क्या आप 100% मतलब अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि सर ये कॉइन्स जो है इस जगह पे यूज़ होता है? और इस वजह से इस कॉइन का कीमत बढ़ने वाला है। इन 200-250 कॉइन्स जितने भी हैं या प 2000 कॉइन है जितने भी हैं, कोई एक कॉइन का यूटिलिटी आप बताओ? नहीं बता पाओगे। क्योंकि एक्चुअल में जो यूटिलिटी हम बताएँगे ना, वो कही सुनी बातें हम बताएँगे लोगों को कि इसने कहा है कि ये कॉइन इस जगह पे यूज़ होने वाला है या इस कंपनी ने कहा है कि इस कॉइन को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। बट इन ओपोरोस द फैक्ट इज़ रियल कि जिस सीएल टोकन पे हम लोग अपना हार्वेस्टर परचेज कर रहे हैं, इस सीएल टोकन की यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी हमारे मैनेजमेंट ने डे 1 पे एकदम क्लियर विज़न में हम लोगों को समझाया है कि जिस सीएल टोकन पे हम लोग अपने पैसे को हार्वेस्टिंग के रूप में लगा रहे हैं, उसे हम अपने प्रोडक्ट सेक्टर में प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मत बनाए हैं या फिर हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हम इस सीएल टोकन का यूज़ करेंगे और ऑलरेडी प्रोडक्ट का जो यूजेस किस तरीके से होने वाला है सीएल टोकन के थ्रू, वो हमारे मैनेजमेंट ने हमारे फुटवेट के मीटिंग में ऑलरेडी दिखाया है मीटिंग में कि हम जो भी हार्वेस्टर कर रहे हैं सीएल टोकन, उस सीएल टोकन के ज़रिए हम आने वाले उनके प्रोडक्ट जो है टॉर्नेट के, उस प्रोडक्ट्स को हम लोग परचेज़ कर सकेंगे। दैट मीन्स कि हमारे जो चीज़ें हम अपने क्लियर विज़न से देखने के बावजूद भी अगर रियलाइज़ ना कर पाए, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई ना हो। तो आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि अगर वो टोकन्स का यूटिलाइज़ेशन इतने बढ़िया तरीके से होने वाला है और इतना ही नहीं, जो टोकन एक बार यूज़ेज़ हो जाएगा, उसका 95% टोकन बर्न हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग विन-विन सिचुएशन में ऑलवेज़ रहेंगे इस कंपनी के साथ में और ये कंपनी 100% मतलब पारदर्शी चीज़ों को साथ में रख के सारे लीडर्स के साथ काम कर रही है। दैट मीन्स कि सर मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो भविष्य है, वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। ये हमारा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस मुझे फ़ील होता है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सर। बाकी सभी लोगों की सोच जो बदल दी है, अलग-अलग लोगों की सोच अलग-अलग रहती है। मेरी जो सोच है, मैं अपना सोच आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर आलोक, आपने हमें बताए, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग चलेंगे मिस्टर 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 किसके पास चलेंगे? अब हम चलेंगे मिस्टर नजरुल इस्लाम लश्कर के पास और नजरुल दा से सुनेंगे। नजरुल दा का काफ़ी एक्सपीरियंस है
तो नजरुल दा, जब आप गए शुरू किए ओपेरॉस, तब आपका क्या सोच था? और जब आप काम किए और जब आप फुकेट गए, मैनेजमेंट से मिले, सब कुछ आपका जो मन में जितने लोगों का जितना क्वेश्चंस था, वो जब क्लैरिटी आया तो आपको क्या अनुभव लगा और आप आने वाला दिन में कैसे सोच रहे हो ओपेरॉस को लेके? प्लीज वेलकम सर। थैंक यू आवर मेंटर मिस्टर अंशुमान शाह और हमारा ऑपरेस टीम मैनेजमेंट के हमारा हार्दिक प्रणाम रहेगा। और सभी हमारा फ्रेंड सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन है। हमारा 2-3 पॉइंट हमारा अच्छा लगा है, वो पॉइंट हम नोट किया है अपनी अपना अपनी। और हमारा टीम को भी ये नोट करने के लिए बोला था, उधर हम मीटिंग किया, हमारा 11 आदमी उधर गया है। सर हम 1998 से हम इन इंडस्ट्री में है और काफ़ी सारा कंपनी में काम किया है, फॉरेन कंपनी में भी काम किया है। लेकिन हमारा अच्छा लगा यही है ऑपरेस का, जो 92 ईयर्स चल रहा है ये टेनॉन कंपनी। और उसको जो सीईओ, उसको जो डेवलपर, उसको डायरेक्टर इतना क्लोज हमारा साथ मीटिंग किया, फोटोग्राफी दिया है, बात किया है। जिंदगी में इतना करीब कोई मैनेजमेंट के साथ मैं तो नहीं हुआ। तो उसको साथ बात करके हम देखा है ये कंपनी आने वाला टाइम टाइम बहुत बड़ा फ्यूचर हम लोग को दे सकता है, क्योंकि उसको पूरा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और हम 2 महीने पहले जब शुरू किया था, थोड़ा मन में डाउट था, इसलिए हम कुछ कुछ कंपनी में काम किया, टोकन का रेट, इन फ्यूचर, सब कुछ के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट सेल के जरिया से हम कंपनी बाई करने के लिए मौका दिया। और इसमें हमारा टोकन का कीमत बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा कम है, लेकिन 1 महीने 10 से 15 दिन के अंदर मेरा ख्याल है जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा सीएल टोकन से बाई करने के लिए। तो ये टोकन का रेट भी आगे बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा मौका यही है, टोकन टोकन जो फार्म हार्वेस्टिंग हो रहा है, ये मालिक हम लोग बन चुका है। क्यों? पिछले महीने, इस महीने 5 तारीख में 5000 वाला एक गोरिल्ला पैकेज लिया है। और हमने दिसंबर 10 तारीख से 15 तारीख के अंदर मैं 10,000 को एक पैकेज हम लूंगा, ये हम वादा किया है। और हमारा टीम से कम 2 लोग से 3 लोग क्लस्टर बन जाएगा इस महीने, और अगला महीने 10 तारीख के अंदर ये हो जाएगा। तो सब कुछ मिलके बहुत इंजॉय किया है और बहुत अच्छा नजदीक से ये मैनेजमेंट को हम लोग देखा है। इसमें कोई डाउट नहीं है डिफॉल्ट होने के लिए। तो सब लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑपरेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए। जितना सारा जानकारी हम लोगों को मिल रहा है, तो हमारा कैपिटल इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है। और सभी लोगों को, और एक दूसरा बार हम बोल रहा हूँ, अंशुमान जी सामने से बोलने के लिए अच्छे नहीं होगा। अंशुमान जी हमारा कैपिटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो नॉलेज हम लोगों को दे रहा है, जिंदगी में 2028 से 2030 के अंदर ही हमारा सब लोगों को 50 करोड़ से 100 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बन जाएगा जरूर। तो हम लोगों को सबको अंशुमान जी को साथ देना पड़ेगा, उनको साथ रहना पड़ेगा। जो बात जहाँ पे जिस टाइम में बोलेगा, उस टाइम हम लोगों को अंशुमान जी को बात सुनना ही पड़ेगा। हम लोग सिर्फ 24 और 25, ये 12-14 महीने अंशुमान जी का साथ दे सकता हूँ, तो हमारा 2028 और 30 के अंदर हम लोगों को 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बन सकता है। हम दिल पे विश्वास किया है। थैंक यू सभी लोगों का हार्दिक प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच नजरुल जी, आपने आपका मूल्यवान जो सोच आपने हमें सुनाया। आप जो सोच रहे हो और क्या आपका सोच है,
सो गाइस, क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? कौन कौन यहाँ पर बोर हो रहा है? नो 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 नो। हाँ, अगर बोर हो रहे हैं तो यस लिखिए मैसेज में, अगर नहीं हो रहा है तो नो लिखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बिकॉज ये हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है, जब कुछ शुरू करते हैं कुछ लोग हमारे साथ बस पे चढ़ जाते हैं। डेस्टिनेशन, उस बस पे चढ़ने वाला बहुत सारे लोगों को डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। वो चढ़ जाते हैं भीड़ देख के और बीच में उतर जाते हैं। कुछ लोग होता है उस बीच वाला रास्ते से फिर चढ़ते हैं, फिर कुछ नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाते हैं, कुछ नेक्स्ट स्टॉप से चढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाते हैं। तो बात ये, उस बस पे कुछ लोग ही होते हैं जो शुरुआत से उस बस में बैठते हैं और एंड तक उस बस में जाते हैं। तो हमें डिसाइड करना है, हम अपने जिंदगी को ऐसे स्टॉप में उतरते जाए या हम अपना डेस्टिनेशन बनाए। तो अगर आपका डेस्टिनेशन पता नहीं है तो प्लीज आज आप अपना डेस्टिनेशन पता करिए कि आप क्या चाहते हो। सचमुच आपका जिंदगी में ऐसा क्या चीज है जो आपका हर चीज को बदल सकता है। जिस दिन आप इस डेस्टिनेशन को पता कर लेंगे, आपका जिंदगी का जो डेस्टिनेशन जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है, जो आपके परिवार को खुशी दे सकता है, क्या क्या करने से आप एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो, जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन आप सचमुच, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको रोक पाए, कोई ऐसा ताकत नहीं होगा जो हमें रोक पाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम काम करने से पहले हम टूट चुके हैं, हम हमारा कुछ आज अभी हमारे पास ताकत नहीं है। आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन सबके साथ चलता है। लेकिन कुछ आदमी को डेस्टिनेशन, कुछ लोगों को डेस्टिनेशन पता होता है और उसे पता होता है हमें क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पर सब कोई है, हमें डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों का जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ये आप मानते हो? यस और नो? हम लोगों के द्वारा हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है दोस्त। ट्रस्ट मी, बहुत सारे, आपने अगर ये इम्पैक्ट आपका 10 लोगों में, 20 लोगों में कर दिया ना, यू आर सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी। और ये हम लोग करने जा रहे हैं। पैसा तो सब कमाने के लिए आता है, अब हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। अब हम आए हैं लोगों को ये आदत डालने में पैसा कैसे बनाया जाता है, और उसी का पार्ट 1 में हम लोग हैं। उसी का पार्ट 1 जर्नी, हमारा स्टेप 1 शुरू हो चुका है। और ये शुरुआत की जर्नी में ये हमारा पहला इंटरनेशनल मीटिंग था। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के मन में होगा बहुत सारे चीज सही से नहीं हुआ। ऑफ कोर्स सही से नहीं हुआ। इवन आप सबको पता होना चाहिए, इस ट्रिप में बहुत सारे अनसर्टेन चीज हमारे साथ भी हुआ है। अनएक्सपेक्टेड लॉस हमें लेना पड़ा। आप अगर बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, इंस्टेंट ऐसा लॉसेस हमको मेकअप करना पड़ा। मैं किसी को बताया नहीं, लेकिन मैंने किया। और वो भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं दोस्त, 2,80,000 भाट इंटू 2.5 गुण कर लीजिए। आपको फ्लाइट में सब मिला के कम से कम 13 से 14 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया लॉस में। बिकॉज मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बीच जो लोग हैं उनको ये करना चाहिए। तो एनीवे, बहुत सारी चीज हम लोगों से हो नहीं पाया, लास्ट मोमेंट का था। लेकिन नेक्स्ट ट्रिप, हर महीना जो हमारा ट्रिप है
वो ट्रिप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, हर चीज बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, और हर ट्रिप में हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी पे आएंगे। हम एक दूसरे का टांग खींचने से अच्छा है, एक दूसरे को अगर हम हेल्प करें, एक दूसरे सब मिलके, ये दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। और इस रेवोल्यूशन में ओपेरोस एक व्हीकल है हमारा। हम और आप इस रेवोल्यूशन का पायलट से, और हमारा एक व्हीकल है ओपेरोस। तो ओपेरोस में हमें चढ़ना है, हमें डेस्टिनेशन पहुंचना है। हमारा बहुत काम बाकी है, क्योंकि डे वन से मैं बोल रहा हूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर रेवोल्यूशन लाना है तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई मीटिंग में बोला था सोलाना बहुत आगे जाएगा। देखिए, सोलाना अगर आप उस टाइम मेरा बात सुनते और सोलाना अर्न करते, तो आज एक एक सोलाना में कम से कम आपको $100 का फर्क आता। $100, एक एक सोलाना में $100। 50 सोलाना होता, इंटू $100 करिए, 100 सोलाना होता, इंटू करिए। लेकिन कोई नहीं सुना, सब अपना अपना करते गए। लेकिन जो लोग किया, वो लोग आज कहां पर है सर? अपॉर्चुनिटी हमारे पास आता कम है, अभी भी टाइम है, वक्त। ये कुछ मैं जो बता रहा हूं, आने वाला 2-3 साल में ये $1000 टच करने वाला है दोस्त। $1000 टच करने वाला है। अपने आप का ऐसा तैयार करिए कि करंट एक्सपेंसेस, सेविंग्स, हर चीज स्मूथ वे पे चलना चाहिए। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है दोस्त, कंपनीज आता है, बहुत कुछ देने देता है। वो आपको खिलाता है, ब्लैक लेवल पिलाता है, आपको डबल ब्लैक लेवल पिलाता है, सिल्वर सिगल पिलाता है, आपको बोलता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारे सामने ऐसे अपॉर्चुनिटी आए बहुत सारे, डेली देखता हूं। दुबई में डेली कंपनी तैयार होता है और डेली कंपनी बंद होता है। वो लीडर को देखता हूं, जो लोग मेरा दोस्त थे, 2 महीना पहले एक, 2 महीना बाद एक, 2 महीना बाद एक, 2 महीना बाद एक। हम बोलते हैं क्या हुआ? बोला नहीं, दिस इज अ न्यू प्लान, बिगेस्ट प्लान, बेस्ट इनकम, दिस दैट। मैं बोला क्यों? जब वो प्लान कर रहा था तो वो भी तो बिगेस्ट था। बिकॉज वो लोग कंपनी चूज करता है, होम चूज करता है, लेकिन उस होम में स्टेबिलिटी नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, जो आज आप लोगों के सामने मैं खुलासा करूंगा कुछ अपडेट्स। लेकिन उससे पहले मैं हम बुलाना चाहेंगे शिमंतो माझी को। शिमंतो, इफ यू आर हियर, आप आपका 2 शब्द हमें बताइए, आपका एक्सपीरियंस। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি বাংলায় বলছি, অসুবিধা নেই তো? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। থ্যাংক ইউ। আজ এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্মে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, আর আমাকে আজকে জুম মিটিং এ বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ওপেরোস, কি বলবো, মানে বেশি কিছু বলবো না। প্রথম সুযোগ পাওয়ার জন্য আমার কথা বা ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। আর ফুকেটে গিয়ে যে অনুভব হয়েছে, সামনাসামনি কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে থেকে, আর এইভাবে যে বিজনেসটা করতে পারবো কখনো ভাবিনি। যে টার্গেট দিয়েছিল, এতখানি খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যেও যে এতগুলো অ্যাচিভমেন্ট হবে সেটাও কোনোদিন ভাবতে পারিনি। আর এই অপরস আমার কাছে একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি। আর অপারেশনের সম্পর্কে বলতে গেলে আমার কয়েকটা বিষয় খুব ভালো লেগেছে। যে অন্যান্য কোম্পানির থেকে, যে আজকে আমাদের উইথড্রল সিস্টেমটা, অনেকে কি হয় মিনিমাম $50 থাকে বা $20 থাকে, এখানে সেই সব কোনো সিস্টেম নেই। আমার যদি $1 হয় উইথড্রল করতে পারি, সারাদিনে যতবার খুশি আমি উইথড্রল নিতে পারি। আর হারভেস্টার তো আমি নিচ্ছি, উইথড্রল সোয়াপ করছি।
তো বেসিক্যালি আমি যতবার যেখানে যা প্রোগ্রামে গেছি নেগেটিভ কোনো কিছু আমি খুঁজে পাইনি। আমি তো ফুল টাইম কাজ করার জন্য এখানে আছি। ভবিষ্যতে আরো ভালো কাজ হবে। আমি মোটামুটি সবসময় কাজের মধ্যেই আছি, আমি তো ফুল টাইম করি। তো এইখানে ওপরে এসে কাজটা করতে আমার আরো ভালো লাগছে, অল্প টাইমে একটা ভালো সাকসেসও পেয়েছি, আগামী দিন আরো সাকসেস পাবো। তো ধন্যবাদ সকলকে এত সুন্দর একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য। আর এই গোল্ডেন অপরচুনিটি আমি খুব চেষ্টা করব আরো ভালোভাবে কাজটা করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার, ধন্যবাদ। थैंक यू वेरी मच श्रीमंत। हमारे पास मिस कैप्टन है, कैप्टन पटनायक। तो कैप्टन सर, आपका कुछ अनुभव हम लोग सुनना चाहेंगे। अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपको अनम्यूट आप कर सकते हैं सर। यू आर को होस्ट। सो आपका दिल का कुछ बात हम लोग सुनना चाहेंगे, हाउ यू फील। Thank you, Anshuman Dada, and good evening and namaskar to everybody, to the entire quorum here. और अच्छा लग रहा है कि एक सिस्टम है। और जब मैं इनिशियली अभी पिछले महीने ज्वाइन किया तो लग रहा था ऐसे कि क्या होगा क्या नहीं है, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस भी हो गया था। तो मैं तो एक इंडियन नेवी का बंदा हूँ, एक डिफेंस अफसर हूँ, तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सर बेसिकली। सो एक जगह में मैं जो कर रहा था पिछले 1.5 साल हो गया, काफी लॉस हो गया उसमें। तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा, जब लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ा बहुत डाउट था मेरे मन में कि क्या होगा क्या नहीं है। लेकिन सिस्टम को समझा, अंशुमन दादा के साथ बैठा, और जो भी आज तक जो भी 2-3 जूम मीटिंग हुआ है अटेंड किया, कुछ थोड़ा सा यूट्यूब में और इसमें मैंने देखा। और मेन थिंग इज दैट अभी जो हम था फुकेट गए थे, तो मिस्टर लॉन बेरी, रिक फॉकसन, मिस्टर रॉस एंड वन मोर जेंटलमैन, तो चारों के साथ जब मिले और उनके साथ जो रूबेरू हुआ हमारा, और पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन हुआ, और एक ग्रुप इंटरेक्शन हुआ जहां पे एक सेशन खोल दिया गया कि क्वेश्चन आंसर सेशन। और मेरा मन में बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बोला कि मैं पहले दूसरे लोग जो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से अगर मुझे आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं सबको नॉलेज में भी डालना चाहता हूं कि हम करीब करीब 75 बंदे थे वहां पे, 75% were there in that meeting at Phuket. I think everybody's doubt was cleared. Everybody's doubt was cleared, and I am thankful to the management, to the core team, to the founders, to the creators, to the designers, to the administrators, to the educators, everybody, that they clarified very confidently. And today, at this moment, with great conviction, I can say that the system is going to be there 100%. It is going to be there with us 100%. We are going to get our returns 100%, sir. I think that conviction I have carried from Phuket, and so far, whatever the interactions that we had amongst each other and with the management team. So I think we have a great road ahead of us. ओनली दैट थिंग इज दैट हम वो रास्ता को कैसे चुने और वो रास्ता कैसे जाएं। डबल इंजन लगा के जाएं, चल के जाएं, दौड़ के जाएं, उड़ के भी जाना पसंद है सर, उड़ के ही जाना भी पॉसिबल है। सो हाउ डू वी गो एंड रीच आवर डेस्टिनेशन? व्हाट अंशुमन दादा वाज सेइंग दैट प्लीज आप अपना हमको अपना डेस्टिनेशन तय करना है क्या है। So once you have prepared that destination, you know that destination, उसके बाद you find the way how to go. Way they have given us. Opera's team has given us the way. Opera's team has shown us the way to reach the destination. Now, how fast you want to go? That's up to us, sir. But I have no doubt in my mind, I will certainly go faster and faster in this way, sir. And I will encourage everybody. कन्विक्शन तो मैं नहीं करता हूँ सबको, तो मैं इतना कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, बट मैं जितना कॉन्फिडेंस मेरे लेवल में आया इंटरेक्शन के थ्रू, अभी टीम को मिलने के बाद, I think I want to share it. I'm just sharing it with you. I'm not trying to convince you anything. And that's what I was asked to do only. That my experience, what is my conviction level, and क्या लगा, कैसे लगा, system कैसा है. I think it's wonderful. It's a brilliant opportunity. I'm not only going to earn from here, I am also going to make good the entire loss that I have made in my previous investment.
Not only I will recover that, but I will go plus and plus. I will earn something for my future. And मैं भी थोड़ा सा ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ. अभी भी ऐसी लाइफ है, इससे थोड़ा ज्यादा भी होना चाहता हूँ मैं. And I'm sure that Operos will make it successful for not only for me, for the entire community. And that's what was very clearly detected when during our interaction with the team. With the team, it was very clear that they are confident that everybody, all of us are going to prosper. All of us will prosper. All of us will learn and all of us will prosper. If their intention is that, now it is up to us, up to me, that how do I go and how do I achieve it, sir. Thank you very much for to have given me the opportunity to talk with the community. Thanks and good luck to one and all. Good luck to one and all. Let's give way together. In the Navy, they call it give way together. Give way together means everybody sitting on the boat is holding the oars. जो चप्पू चलाने के लिए सब लोग थे. Give way together means everybody is holding to the thing. All 6 of them in the boat will give it together, in, out. So let us give way together. Let us make a force. Let us make a Operos force. That and Operos meaning is that only. So let us be forceful in our approach. Let us be forceful in our commitment also. All the best and good luck to everybody. Thank you, you Anshuman. for your inspiring words and your energy. I can see, you are one of the biggest part of WeFluence, because why we say WeFluence? We, yeah, it's not me, it's not Patnaik, Mr. Patnaik, it's not Alok, it's not Niranjan or Mr. Pathak. It's all about we. And we are going to change, transform many lives around the world. Trust me, we can change together many lives. So this is the thing, and we all the director of WeFluence. We are not a distributor. We are not, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है. हम ओपेरोस WeFluence के थ्रू ओपेरोस में ज्वाइन नहीं किए. हम लोग सब एक एक डायरेक्टर है इस जर्नी का. हम लोग एक एक ओनर है इस जर्नी का. और इसके साथ हम चलेंगे मिस्टर किताबुल दाबक के पास. उनसे सुनेंगे उसका एक्सपीरियंस. मिस्टर किताबुल दाबक. थैंक यू दादा. बहुत बहुत शुक्रिया मेरा को बुलाने के लिए. एक्चुअली सर मैं इतना मतलब एक्साइटेड हूँ. मैं बोलने के लिए मैं मतलब पूरा क्या बोलूं. मैं सबसे गलती किया. पहले जब मेरा ये अपॉर्चुनिटी आया था उस टाइम मैं ज्वाइनिंग नहीं हुआ. मैं 2 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद ज्वाइनिंग हुआ. लेकिन उसके बाद जब आस्ते आस्ते धीरे धीरे जब मैं समझा एक सिस्टम क्या है, तब उसके बाद थोड़ा सा एक असेसमेंट करके मैं थाईलैंड में गया आपको साथ. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा 4-8 आदमी लेके गया था. वहां पे आके जब मैं पूरा ऑफिस में जब मैं देखा ये जो अपॉर्चुनिटी है. देखिए हम लोग सब गरीब आदमी लेके जन्म लेते हो, लेकिन मरते भी गरीब होके. लेकिन ये अपना ऊपर वाला का गलती नहीं है, ये गलती अपना है. ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में मैं एक समझ में आया. ये सिस्टम में कंपटीशन जो काम होता है ना, वो कंपटीशन में काम में बहुत मजा आता है इसमें. ये जो सिस्टम है, एक आदमी अगर डेली 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपया कमा सकता, थोड़ा सा टाइम में 1 लाख रुपया कमा सकता हर साल आदमी. लेकिन ये जो सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम बनाया. मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसा एक सिस्टम बनाया. सर मैं क्या बोलूँ, ये सिस्टम में अगर 1 महीना बाद में कोई आदमी आएगा वो भी मिलियनर बन सकता. 1 महीना पहले जो आया वो भी मिलियनर बन सकता. कोई आदमी ऐसे विदाउट मिलियनर बन के नहीं जा सकता. सब आदमी लोग यहाँ पे मिलियनर बिलियनर बन सकता. तो मैं आपको जवाब देता हूँ, ये सिस्टम मेरा क्यों इतना अच्छा लगा. मेरा नहीं, मतलब बहुत 2-3 कंपनी में काम किया. आज 4 साल मेरा को ये नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एज है. 4 साल में काम करो, आपको साथ ही काम कर रहा हूँ. लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ना,
ज्यादा मेरा को प्लान देना नहीं पड़ते। एक आदमी बोला ये भाई तुम अप्रोच करो, मैं एक आदमी फोन किया, मैं बोला हाँ, बोला अप्रोच मेरे पास आया था, लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, सबसे बहुत अच्छा लगा ये इसका प्रोफाइल, इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा है जे मैं क्या बोलूं। तो इसमें मैं आपको सबको सामने, अभी कितना आदमी है इसमें, 71 आदमी है, पीपल है पूरा मेरा पकड़ के, मैं जवान देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ दादा, मैं एक ही दिन मेरा आईडी जो है मैं शेयर करके पूरा स्क्रीन शेयर करूंगा। जब तक डेली 1 लाख रुपया नहीं कमाऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। कैसे भी करके मैं जाऊंगा, 1 लाख रुपया डेली कमा सकता है, यहाँ पे मेरा ये विश्वास है, मेरा इस सिस्टम का अंदर दम है। 1 लाख रुपया मैं आपको जवान देता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता मैं, 1 लाख रुपया डेली जब तक नहीं कमाऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं ये शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके सबको मैं मेरा आईडी दिखाऊंगा, यही मेरा टारगेट है। लेकिन खाली मैं नहीं कमाऊंगा, मेरा अंदर जितना मेरा टीम है, जितना मेरा मेंबर है, सबको मैं कमाऊंगा, सबको मैं हेल्प करूंगा, सबको मैं ऐसा ऐसा दिमाग में, ऐसा ऐसा सिस्टम बोलूंगा जो ऐसा कमा सकता, मैं वैसा उन लोग को भी 1 लाख रुपया होगा, मेरा भी हो जाएगा। तो डाउनलाइन में 1 लाख रुपया कमाऊंगा तो मैं भी आगे जा पाऊंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद दादा मेरे को मौका देने के लिए। नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा आपको, मेरा को स्टेज में ऐसा, मेरा पाठक जी है, निरंजन साहब है, आप भी है, मैं स्टेज में जाके बोलूंगा मैं 1 लाख रुपया डेली कमा रहा हूँ ये अपरस से। थैंक यू सो मच। I appreciate, I believe this, Kitabullah. You have done this. डन, ओके डन। मैं प्रॉमिस करता हूँ, सबको प्रॉमिस करता हूँ, जब तक 1 लाख रुपया आप डेली नहीं कमाऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मौसम बिगाड़ने वाला है, सब कुर्सी पे पेटी बांध लीजिए, ठीक है? अभी तो शुरू है, पार्टी अभी शुरू है। ओके, थैंक यू वेरी मच किताबुल्ला। और सबसे पहले देखिए ये एक्साइटमेंट क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ यहाँ पर 70 लोग हैं, 70 लोगों के पास था। ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ इस ओपेरास में 300 से अधिक लोगों को मिला था, 300 से अधिक लोग। और ये 300 लोग किसके साथ है? आप और हमारे साथ एक साथ है। लेकिन इन 300 लोगों में क्यों खाली 67 68 लोग जा पाए? क्यों मालूम है? बिकॉज ये 300 लोग में से बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में नहीं आते। वो लोग को हम लोग यहाँ पर नहीं लाते। अगर हम उनको ट्रेनिंग मीटिंग का ये सिखाए, वो लोग भी बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ट्रांसफॉर्म होने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं बदला तो मैं दुनिया को कैसे बदलूंगा, या मेरा 10 दोस्त को कैसे बदलूंगा? तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपका जो टीम है, आपका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हमेशा कॉल पे जरूर लाइए, उनको एहसास दिलाइए इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉल। मैसेज मत करिए खाली, क्योंकि उस इंसान को मालूम नहीं है। उस इंसान को आप बिजनेस पे लाए खाली दिखा के कि भाई इतना डालने से इतना मिलता है, इतना डालने से इतना मिलता है। ओपेरॉस आप और हमें कोई इतना डालने से इतना मिलता है वो नहीं सिखाता। ओपेरॉस एक सिस्टम है, ओपेरॉस एक वे है जहां से हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हार्वेस्टिंग का टेस्ट ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे हमें जो प्रॉफिट जनरेट करके देता है वो हम ट्राई कर सकते हैं। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। कोई बंदा अगर सोचेगा
मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मैं एमबीए नहीं हूं, सीए नहीं हूं और मुझे 2 लाख का सैलरी मिलेगा या 3 लाख का सैलरी मिलेगा, तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता। अगर आप बिना मीटिंग अटेंड किए हुए सोचोगे कि आप ओपेरोस का सुपरस्टार बन जाओगे, आप बहुत सारे करोड़ों रुपया इनकम करोगे, दोस्त लिख लीजिए एक क्रॉस, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उस नॉलेज को लेते हो, वो कल्चर में आते हो, वो संगत में आते हो, तो 100% आप सक्सेसफुल बन सकते हो। बचपन में हमें बोला जाता था, पेरेंट्स लोग हमें बोलते थे संगत, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। संगत एक बहुत बड़ा रीजन है। हम जिस संगत में, हम अगर चोर लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा संगत भी, हमारा सोच भी वैसे बढ़ता जाएगा, चाहे आप जितने भी अच्छे लोग हो। अगर आप उस संगत में रहते हो, जो जैसा भी मिलेनियल्स के संगत में रहते हो, वो आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन उस संगत से आप जो अनुभव गैदर कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस ले सकते हो, वो एक्सपीरियंस अगर आप काम में लगाते हो दोस्त, 100% आप भी पहुंच सकते हो उस मौकाम तक। इसलिए संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो लोग पीएनपीसी करते हैं, मालूम है ना? और उस संगत में जितने लोग जुड़ते हैं, वो लोग उसी में बिजी रहते हैं। हमारे संगत में बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग ग्रोथ सोचते हैं। वो इस संगत, जब इनका ये इफेक्ट आ जाता है, वो ये साइड इफेक्ट लेना नहीं चाहता है। पीएनपीसी वाला अनसक्सेसफुल, हम कुछ नहीं अटेंड करेंगे, वो भी संगत है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हर चीज में संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का डेट में मैं ओपन चैलेंज करता हूं, किसी को भी दम है, 1 लाख रुपया मेरा तरफ से है, मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाइए जिस अपॉर्चुनिटी में दम हो। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आई एम द फर्स्ट गाय टू साइन अप दैट बिजनेस। अगर आपको प्रूफ कर पाए, हम ओपेरॉस में प्रूफ कर सकते हैं, ओपेरॉस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फॉर मिस्टर लॉनबेरी, फॉर रिक फॉक्सन और जो डायरेक्टर्स है, उनके लिए ओपेरॉस बिजनेस कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्टेप इन किया, इस क्रिप्टो से पैसा बनाने के लिए नहीं। दूसरे कंपनी के ओनर्स आते हैं, वो लोग आके हमें, हमारा पैसा लेता है और हमें बोलता है, लुक्रेटिव कुछ प्लान दिखाते हैं और हमें बोलता है, भाई साहब आप इसको रखो। वो लोग आते हैं, उसका नेचर अगर समझे आप तो देखेंगे वो पैसा बनाने के लिए आता है। लेकिन क्रिप्टो बना क्यों? क्रिप्टो बना ट्रांजैक्शन के लिए। किस चीज का ट्रांजैक्शन? प्रोडक्ट, सर्विसेज, इस चीज का ट्रांजैक्शन। कोई कंपनी है, हमें दिखाइए जिनके पास सही ट्रांजैक्शन है, सही उसका इकोसिस्टम है। वो हर कंपनी आता है, बोलता है हमारे पास, आप ऐसा करेंगे, कल हम ये इकोसिस्टम बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमारा टोकन यूज होगा। और ओपेरॉस के पास इकोसिस्टम है। 2010 साल से वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री में है, $multi-million का टर्नओवर है। लॉनबेरी का खुद का इंश्योरेंस कंपनी है।
यूएस के अंदर। और आप जानते हो कोई भी आदमी इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं चला सकते अगर उसके पास वो औकात नहीं है। तो रिक फॉक्सन के पास ऑटोमोबाइल बिजनेस है जो 6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेशन करता है। यूएस के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, प्राइवेटली हेल्ड। पब्लिकली हेल्ड 7th पोजीशन पे आता है यूएस के अंदर। छोटा मोटा नहीं है। 6 बिलियन इक्विवेलेंट, गूगल करिए, 6 बिलियन इक्वल टू हाउ मच इन इंडियन रुपी। लॉनबेरी ऑलरेडी 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा अधिक उनका वर्थ है हर साल। गूगल करिए, मुझे विश्वास मत करिए। और भी जो डायरेक्टर है उनके बारे में भी आप गूगल कर सकते हो। ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को क्यों लाया? इतना अच्छा पोर्टफोलियो है, इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इन सब के बाद इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए लाया क्योंकि उनके पास रियल बिजनेस है। वो उस बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का 30% अगर शिफ्ट कर पाए तो उनको $multi-million का सेविंग्स हो सकता है। और वो सेविंग से वो और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ साथ उनके पास जो फैक्ट्री है, जी जो गए थे वो लोगों ने सबको ही सुना, 5000 फॉर्मूला है उनके पास। नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस में तो कुछ ही प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनल हर स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, हर जगह यूएस में उन लोगों का प्रोडक्ट्स है ट्रेडिशनल। 5000 फॉर्मुलेशन। यहां पर जैसे कम्युनिटी ग्रो कर रहा है क्रिप्टो में, वहां पर उन लोगों को भी तो हेल्थ एंड वेलनेस चाहिए। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक नए कम्युनिटी जो इनसे पैसा कमा रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसी करेंसी से वो यूटिलाइज कर सकता है उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पुराने कम्युनिटी जो ये प्रोजेक्ट से करेंसी लेके खरीद सकता है, लेकिन ये जाएगा कहाँ? ओपेरॉस के पास ही तो जाएगा करेंसी, और ओपेरॉस सर्कुलेशन पे भेजेगा। अब आज नहीं, 6 महीना, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना बाद का सोचो। आप वो बुर्बक जैसा मत बोलो आज मेरा करेंसी का दाम इतना है, कल मेरा करेंसी $100 हो जाएगा। कैसे होगा? हम बेवकूफ है? आप बोलोगे हम मान लेंगे, लेकिन हम यहां पर दिखा सकते हैं। हमें पता नहीं है कितना ऊपर जाएगा, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं कि ये करेंसी जो आप और हम बना रहे, इस करेंसी का ग्रोथ क्यों होगा। ये करेंसी नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी के लिए नहीं बना, ये ट्रांजैक्शन के लिए बना। इसका पे ग्रेड को भी कंट्रोल्ड किया गया है। जब लोग हार्वेस्टर खरीद रहे, करेंसी का दाम ऊपर उठते जा रहा है। जब लोग सीएल टोकन का ग्रोथ ले रहा है, जब बेचेगा तो पैसा तो एलपी पूल से जाएगा, वो जब बेचेगा तो वो नीचे आएगा, दाम घटेगा। अभी जैसे देख रहे हो दाम घट रहा है। यहां पर वो पे ग्रेड किया गया है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिस्काउंटेड प्राइस जो आ रहा है। अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, जनवरी में इंटीग्रेट होगा या दिसंबर एंड में इंटीग्रेट होगा, सबको पता है। जहां पर जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, वो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी प्रोडक्ट खरीदेगा यहां से, या जब भी
थोड़ा बैलेंस नीचे जाएगा, वो करेंसी ये लोग खरीद रहा है ना, तो जब खरीदेगा लिक्विडिटी पूल बढ़ेगा, जब लिक्विडिटी पूल बढ़ेगा तो करेंसी जाएगा, तो इसको बैलेंस किया गया है। और ये ट्रांजैक्शन पे करेंसी 95% बर्न होगा, 5% सर्कुलेशन पे रहेगा। 60 बिलियन करेंसी है, 5% करेंसी रहेगा ट्रांजैक्शन के लिए। डू यू थिंक व्हाट विल बी द फ्यूचर? जिसको पता नहीं है, जो इसको आरओआई के तरह देख रहे हो, आपको कंपनी नहीं बोल रहा है कि आप मत बेचो, आप डेली बेचो, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकली मूवमेंट करिए, स्ट्रैटेजिकली मूवमेंट करिए, बेनिफिट्स लीजिए हर चीज का। आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि यू आर नॉट फोर्स टू स्टॉप सेलिंग कर आवर सीएल टोकन। कोई फोर्स नहीं है। यू आर ओपन टू सेल द टोकन फ्रॉम द डे वन, बिकॉज हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई चाहिए प्रोजेक्ट को। सर्कुलेटिंग सप्लाई कौन जनरेट करके दे रहा है? आप और हम। जो हम लोग कर तो रहे थे, लेकिन हमें इतना गहराई से पता नहीं था दोस्त अंदर। जब हम लोग पुकेट पे गए, उन लोगों से बात किए, उन लोगों से सब क्वेश्चंस आंसर किए, हमें पता चला इसके अंदर सीक्रेट क्या है। क्यों ओपेरॉस? This is not a project to make profit for the owners. This is a project to help community to get an opportunity. Also, this is a project जो उनका existing business है, उस business का 30% savings भी किए तो $multi-billion का सेविंग्स होगा, जिसको वो लोग आने वाला टाइम पे काम में लगा सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन सोर्स है दोस्त। अब इस प्रोजेक्ट पे हम और आपका सोच क्या होगा? हमें एक प्रोजेक्ट बताइए, कोई भी, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, चैलेंज ओपन। उसका ऑनर्स को बुलाइए, हम ओपेरॉस का ऑनर्स को बुलाएंगे। शो करने बोलिए ट्रांसपेरेंसी, हम भी दिखाएंगे ट्रांसपेरेंसी। शो करने बोलिए हर चीज, उसका इकोसिस्टम, हम भी इकोसिस्टम शो करेंगे। जस्ट टैली करिए। अगर you can prove that opportunity is biggest, I can assure one thing, I am the first guy who is going to sign up. अगर आप ट्रांसपेरेंसी शो कर सकते हो तो, अगर ट्रांसपेरेंसी आप शो नहीं कर सकते हो तो you have to start with us. This is a biggest opportunity दोस्त। आप समझो, आज हम लोगों ने काफी लेट हो चुके हैं, हम लोग मिले, आप लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हम कल भी मीटिंग करेंगे। कल से हम लोग एक पण लेते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स पे हम हर कोई अपने अपने जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी बुलाएंगे, और हम नए लोगों को भी बुलाएंगे, क्योंकि हमने बोला नेक्स्ट इवेंट पे जो होने वाला है, नेक्स्ट इवेंट पे हमारे इंडिया से कितने लोग जाएंगे, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था। कोई बोल सकता है? मैं अपनी टीम से 100। आपने बोला था, ओके। हम लोगों ने बोला था 600 लोग हम लोग एक साथ जाएंगे थाईलैंड, फुकेट, क्योंकि इस बार बहुत सारे चीज हो नहीं पाए,
और नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने ग्रुप के साथ चलेंगे। और इस बार हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लेके आए, हमारे लिए गाइड का काम करना इजी होगा हमारे टीम के लिए, और हम अपने अपने टीम को संभाल पाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपना टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हर चीज करना है। बिकॉज जब आप लोग कर लेंगे, आई एम द रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम दैट, आई कैन फोकस ऑन द ग्रोथ। सो दोस्त, आज हम लोगों ने इन जनरल बात किए, कल से हमारा अपॉर्चुनिटी मीटिंग शुरू होगा, और प्लीज बी द फर्स्ट, लेट्स मेक इट हैपन। हमारा साउंड ग्लोबली जाना चाहिए कि हम इंडियंस कहीं किसी से कम नहीं हैं। मैं कल एंड ऑफ द मीटिंग आप लोगों को एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा, एक सोर्स दिखाऊंगा, जो मेरा पूरा थाईलैंड और वियतनाम का टीम को सोच को बदल दिया। वो कैलकुलेशन मैं कल लास्ट में दिखाऊंगा, और उन लोगों को ही दिखेगा जो लोग लास्ट तक रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो, थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो। और क्या करना है, जल्दी से जल्दी फोन उठाइए, सोइए मत, हमारा नींद कंप्लीट हो चुका है, अब सोना नहीं है, जागते रहना है, बिकॉज वी नीड टू वर्क हार्ड नाउ। जब तक हमारा पीछे लाल नहीं होगा तब तक हमें मजा नहीं आएगा, पिछाड़े लाल नहीं होगा तो हमें तब तक मेहनत करना है। एक झाड़ू लीजिए, एक पोछा लीजिए, और झाड़ू और पोछा करते रहना है ग्लोबली। Let's do it together. Thank you very much for coming. See you all tomorrow. Bye bye. Good night.